just like Ambanis, Adanis, Tatas, Birlas, these kind of people जिनके पास एक legacy से wealth है, and if that kind of people are in power, then we can say it is. Hello everyone. So today we are going to discuss about CUET. What kind of examination is this? What kind of things they ask you in English section, especially the VA part. So today we will be discussing the VA portion of the CUET. And you also know that ki NTA has released ki they will give you some parajumbles, some RCs, and most of the part will cover from vocabulary section. So vocab is going to be the game changer because RC you can manage if you have good practice, and even we will do it in the next class also. Same goes with parajumbles. You can do it practice on your own also, and we will also do togetherly. But vocab cannot be prepared in one day, right? It takes proper, classes and lot of time to manage all these words and to have a good retention over there. So all I'm trying to say is vocab is the most crucial part which is going to make the decisions. Maybe you are going to in, maybe you are going to out. So we'll start with the first session which is going to be based upon vocabulary, and the topic is one word substitution. Most favorite part है ये CUET का. Around 2 to 4 questions आपको मिल जाएंगे. In the name of RC also sometimes, कभी कभी directly भी आता है, कभी कभी appropriate words में भी आ जाता है. So they have multiple options to ask you, but you don't have multiple choices. You have to learn these words, you have to have good retention. But I'll promise कि आपको अलग से mug-up नहीं करना पड़ेगा. It will not take next level force to learn all these words. If you're just attending these lectures, then you will be able to identify the correct option in the given examination. Okay, so this is my name, Pallavi Mishra, and we are going to start with the first topic of CUET, that is one word substitution. Okay, let's go to the first topic is type of killings. Type of killing is one of the favorite topic for CUET. ठीक है, अब killing में we have mentioned कि side is a root word. Side is a root word for killing. Okay, CIDE. This means to kill someone, killing. अब किसकी killing important है? पहला killing है suicide. So SUI is a root word for self. ठीक है, and side means killing. तो अगर आप self मतलब आप खुद को खुद kill कर रहे हो, then this is suicide, the killing of oneself. Okay. Second is saying the killing of one's husband. Marital status से आप याद कर सकते हो mariticide. Marital status से marity, that means hubby, husband. Okay, and side is killing. आपको रूट वर्ड्स याद करने हैं क्योंकि आप इनसे मल्टीपल वर्ड्स बना सकते हैं. नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? पेरी साइड से. पेरी मतलब पेरेंट्स एंड साइड इज किलिंग. नेक्स्ट द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. न्यू बॉर्न चाइल्ड को हम इन्फेंट्स कहते हैं, सो किलिंग वुड बी इन्फेंटिसाइड. आई होप दैट्स ओके टू यू. देन किलिंग ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मतलब फिलीसाइड. फिला एक रूट वर्ड होता है, उससे बनता है ये चिल्ड्रन वर्ड. फिला से बना है फिलीसाइड. आई होप दैट्स क्लियर टू यू गाइज एवरीवन. किलिंग ऑफ वन सेल्फ सुसाइड. किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड मैरिटिसाइड. किलिंग ऑफ पेरेंट्स पेरिसाइड. किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इन्फेंटिसाइड. किलिंग ऑफ चिल्ड्रन फिलीसाइड. मूविंग फर्दर, द किलिंग ऑफ अ किंग. नॉट जस्ट किंग, समटाइम दे विल आस्क यू लाइक रूलर. इफ समवन इज लाइक रूलिंग समवेयर, कभी कभी किंग की जगह पर रूलर भी लिख देते हैं वो लोग. They are so smart ना. So they'll mention just ruler. Then also आपको क्या बताना है? It's regicide. आप इसको याद कर सकते हो राजा. राजा मतलब जो रूल करता है, तो राजा की killing मतलब regicide, killing of a king, maybe a ruler. Then you can say it's a regicide. Side is killing. The killing of human being. Human being से क्या बना है? Homicide. Side again killing, and homie is for human. Okay. Next is killing of a father. फादर के लिए जो हम रूट वर्ड यूज करते हैं वो होता है पैट. पैट इज अ रूट वर्ड फॉर फादरहुड. पेट्रियार्की को रिप्रेजेंट करता है ये. पेट्रियार्की मेट्रियार्की सुना है ना आपने? मेट्रियार्की इज फॉर मदर, पेट्रियार्की इज फॉर फादर, लाइक मेल डोमिनेंस. सो पैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फादरहुड. तो किलिंग ऑफ फादर पैट, फादर साइड CIDE. किलिंग ऑफ फादर इज पैट्रिसाइड. सेम गोज विथ मदर. मैरिटिसाइड है अगर तो वो मैरिटल स्टेटस वाला हस्बैंड हो जाएगा, बट मैट्रिसाइड है तो मदर. मेट्रियार्की मैटर्निटी सुना होगा आप सब लोगों ने. दैट्स मैट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ मदर. अब आप एक बात समझिए, कई बार एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है, द नेम गिवन बाय मदर नोन एज मेट्रोनिम. ठीक है, मेट्रोनिम.
अब निम मतलब नेम हो गया और ये रिप्रेजेंट करता है मदर को, तो इट्स अ नेम गिवन बाय मदर. अगर पैट्रिनिम है तो लेट्स सपोज माय नेम इज पल्लवी मिश्रा, तो यू कैन वेल अवेयर ऑफ दिस कि माय फादर सरनेम इज मिश्रा, तो मिश्रा इज अ डिराइव्ड नेम फ्रॉम माय father, then this is my patronym. Okay, it's a name derived from father. Next is fratricide. fratricide बना है फ्रेटर से, this is फ्रेटर, फ्रेटर से बना है fratricide. फ्रेटर्निटी आप सबने सुना होगा, ब्रदरहुड की फीलिंग ना, फ्रेटर्निटी इट्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. तो फ्रेट्रिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ ब्रदर. किलिंग ऑफ सिस्टर इज सोरोरिसाइड, रिपीट हो चुका है, वापस आने के चांसेस भी हैं. Killing of one sister is sororicide. Killing of one's wife, uxoricide. Uxory is always used for the wife. ये हमेशा wife के लिए आएगा. If someone has immense love for his wife, then we can use the term uxoriophile. इतना तो आपको करना आना चाहिए, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है क्लास में, बट स्टिल वापस बता देती हूँ. अगर फिल कहीं पे आता है, फाइल फिल कुछ भी, देन इट्स अ रूट वर्ड फॉर लव, मतलब इमेंस फॉन्डनेस. ठीक है, इफ समवन हैज इमेंस लव फॉर हिज वाइफ, देन यू कैन से कि ही इज एन यूक्सोरीफिलिस्ट या ही इज अ यूक्सोरीफाइल. अगर लव आएगा तो यूक्सोरीफाइल हो जाएगा. इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इफ समवन हैज इमेंस लव फॉर बुक्स, तो अगर बुक्स लव तो आपको पता है फाइल होता है, और बुक्स के लिए हम यूज करते हैं बिब्लियो, bibliophile. If someone has immense love for books, then the person is bibliophile. Okay, if someone has immense love for books, then the person is bibliophile. If someone has immense love for his wife, that is uxoriophile. Killing of whole race or community. आपको पता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मारना, जैसे कश्मीरी पंडित्स को मारा गया, सरदार्स को मारा गया, ऐसे अलग अलग कम्युनिटी को लोग टारगेट करते हैं. क्रिश्चियंस को आपने देखा कितना ज़्यादा वेनेजुला वगैरह में कितना ज़्यादा इशू बना है इन चीज़ों का. तो इफ समवन किल्स लाइक द होल कम्युनिटी, देन इट इज़ नोन एज जेनोसाइड. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स जेनोसाइड. साइड इज़ फॉर किलिंग एंड जेनो इज़ फॉर कम्युनिटी. ओके, ग्रेट. लेट मी रिवाइज यू वंस, फिर हम वापस से करेंगे नया टॉपिक. फर्स्ट इज टाइप ऑफ किलिंग, एंड द रूट वर्ड फॉर किलिंग इज साइड, CIDE. इफ आई से killing of oneself, then it is suicide. SUI, so is known as self, and CIDE is killing. Killing of one's husband, it's mariticide. Marital status से याद रखिएगा. Killing of parents, parricide. Killing of newborn child, infanticide. Newborn मतलब जैसे आपने सबने स्टोरी सुनी होगी कंस मामा जी की, है ना. He used to kill all the 7 children of माँ देवकी. उनके बच्चों को तुरंत जो पैदा होते थे उन्हें मार देता था. तो दैट इज किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, मतलब इन्फेंटिसाइड. किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड. किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, फिलीसाइड, मेड फ्रॉम फिला. किलिंग ऑफ किंग, रेजीसाइड. राजा से याद रखेंगे रेजीसाइड, कभी कभी रूलर के नाम से भी आ जाता है. किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड. Killing of a father, patricide. Killing of a mother, matricide. Killing of one's brother, fratricide. Killing of one's sister, sororicide. Killing of one's wife, uxoricide. Killing of a race or community, genocide. I hope that's okay to you. Next topic is type of government. Government के लिए एक रूल, एक रूट वर्ड बनता है, that is cracy. आप सब बोलते हो ना डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड ऑल. सो वैसे ही एक रूट वर्ड होता है, that is crazy, and this means governance, किसी का rule. Okay, the most commonly asked are theocracy. The government by divine guidance. अभी डिवाइन गाइडेंस की जगह पे कभी कभी आता है रिलीजियस पीपल. ओके, जो ये THEO है, थियोब्रोमा, थियो जो वर्ड आता है, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर रिलीजियस थिंग्स. So if I say it's a government of divine guidance, it's a government of religious people, then of course you have to get it to know that we are talking about theocracy, theocratic government. Okay, अगर यहाँ पर आता है let's suppose study, मैंने बोला study of religion, यहाँ पर theocracy आया है, but मैं पूछूँ आपसे what is known as study of religion. रूट वर्ड्स पढ़ने का यही फायदा होता है गाइज. देखिए रिलीजन का you all know थियो होता है, लिख दिया. स्टडी यू ऑल नो लॉजी, सो दिस इज थियोलॉजी, बिकॉज लोगोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टडी, है ना बेटा. सो थियोलॉजी इज व्हाट? इट्स अ स्टडी ऑफ रिलीजन.
correct. And theocracy is it's a government by religious people or the government of divine guidance. Both are correct. Next पढ़ेंगे आगे government by military class जो पाकिस्तान में चलता है, that is stratocracy. Stratocracy, it's a government by military class. Second is government by women. Women का root word is gyne, gynac, कुछ भी बोल सकते हो आप. और दूसरा matriarchy तो होता ही है. So matriarchy मतलब it's a representation of women government, feminine energy. Gynarchy is also a word which means archy is for rule. इसका मतलब भी रूल ही होता है और गाइन इज रूट वर्ड फॉर विमेन. तो इफ अ सोसाइटी इज रन बाय विमेन रूल देन वी कैन से वी फॉलो गाइनर्की और वी फॉलो मेट्रियार्की. मेट्रियार्की एंड गाइनर्की आर सिमिलर वर्ड्स. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय मैन. मैन या यहाँ पे तो प्लूरल फॉर्म में मैन लिखा है. गवर्नमेंट बाय मेन मतलब वेयर द मेन आर इन पावर लाइक अस, लाइक इंडिया. पेट्रियार्की इज देयर. बहुत पहले लेटर वैदिक एज से पहले इट वॉज मेट्रियार्की बट आफ्टर लेटर वैदिक एज इट्स पेट्रियार्की. ठीक है. सो पेट्रियार्की में क्या है, मेल डोमिनेंस बढ़ जाता है. इट्स अ गवर्नमेंट बाय मेन और कह सकते हो आप मेल डोमिनेंस. ठीक है. पैट इज अ रूट वर्ड फॉर अगेन मेन एंड फादरहुड. सो पेट्रियार्की. और उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड और बना है दैट इज एंड्रियार्की. एंड्रोज. एंड्रोज एक रूट वर्ड होता है गाइज विच मीन्स मेल. So if a male is in rule या फिर it's a society run by males then this is एंड्रियार्की. आगे बढ़ेंगे. ये बहुत कम पूछते हैं एग्जाम में बट ठीक है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई हैव रिटन हियर. गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट. जब गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट के जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जब वो रूल में आते हैं, वो पावर में आते हैं, इट्स ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS ये सब लोग. गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी. नोबल्स. गवर्नमेंट बाय नोबल्स और बाय नोबिलिटी बोथ आर सेम. दे आर नोन एज एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेट्स सुना होगा. कम पूछते हैं एग्जाम में, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी उसको आपने ध्यान से पढ़ना है. गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल इज इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल. वेल्दी पीपल. प्लूटोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट. रिपीट होता है, कॉमनली आस्क्ड है. ठीक है. प्लूटोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट गाइज. प्लूटोक्रेसी में वेल्थ कैसी होती है, which kind of wealth they have, like anyone has the like clue about it? Okay, just like Ambanis, Adanis, Tatas, Birlas, these kind of people जिनके पास एक legacy से wealth है, and if that kind of people are in power then we can say it is plutocracy. आपको पता होगा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी को सब लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और मोदी जी तो जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ अडानी को कोई ना कोई पावर प्लांट उनका चलने लगता है. तो लोग कहते हैं कि कंट्री में प्लूटोक्रेसी है. वी आर नॉट लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक एरा बट वी आर लिविंग इन प्लूटोक्रेटिक एरा विच मीन्स इट्स अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल. ओके. डेमोक्रेसी में है लिखा हुआ है मनीड पीपल. मनीड पीपल का मतलब होता है दोज हु हैव बिग लैंड्स, प्लांटेशंस, बड़े बड़े बागान जिनके होते हैं, चाय के, किसी भी चीज़ के, खूब वेल्थ है इनके पास, बहुत ज़्यादा ज़मीन है. इंडिया में बहुत टाइम तक ज़मींदारी सिस्टम था, तो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन उसका पावर ज़्यादा. यू कैन आई गेस सबने वो मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, वहाँ से आप देख सकते हो दोनों ठाकुर है, एक की बात सब मान रहे हैं, एक की बात नहीं मान रहे हैं, उसके जेलसी में वो और ज़्यादा विकेट होता जा रहा है. तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच लैंड यू हैव. जिसके पास जितनी लैंड है उसका पावर उतना ज़्यादा है. तो इट्स अ डेमोक्रेसी. इट्स अ गवर्नमेंट रन बाय मनीड पीपल एंड दैट मनी इज इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड प्लांटेशंस. ओके. आगे बढ़ेंगे. ओके. गवर्नमेंट बाय लीस्ट कॉम्पिटेंट पीपल. अब लीस्ट कॉम्पिटेंट कभी कभी नहीं लिखा होता है, लिखा होता है लेस डिजर्विंग. दोनों का मतलब आपके लिए सेम है गाइज, लेस डिजर्विंग. ठीक है. तो इफ समवन इज लेस डिजर्विंग और लीस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, काइंड ऑफ पीपल जिनके पास इतना ज़्यादा ओके सॉरी गाइज where I was, yes, it's a government by less deserving people or least competent people and they are known as kakistocracy. Kakistocracy में उन लोगों की गवर्नमेंट होती है बेटा जो एक्चुअल लाइफ में दे आर नॉट वेरी मच डिजर्विंग और जिन्हें शायद हम उन्हें नहीं उस लायक समझते हैं कि उन्हें सरकार चलाने का इतना बड़ा डिसीजन जो जिन्हें लेना होता है और उसमें ऐसे लेस डिजर्विंग या लीस्ट कॉम्पिटेंट टाइप ऑफ लोग जाएं. तो जब ऐसे लोग पावर में आ जाते हैं देन इट इज कैकिस्टोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय वन एब्सोल्यूट पावर दैट इज ऑटोक्रेसी. ये कभी नहीं पूछा जाता है
ये पूछा जा सकता है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम, इट इज एनार्की। आर्की मतलब रूल और उसके आगे एन लगाया, मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज एनार्की। अ सिस्टम रूल्ड और कंट्रोल्ड बाय मेन, दैट्स पेट्रियार्की। पैट भूलिएगा नहीं, ये बहुत बार आता है। अभी मैंने आपको आगे भी पढ़ाया था, वापस रिपीट हुआ है ये, सो इट्स द इम्पॉर्टेंट वन। द रूल और कंट्रोल ऑफ मदर इज मेट्रियार्की। सेल्फ रूल और कंट्रोल इज ऑटोनॉमी, कम आता है ये। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लुक्स लाइक पेट्रियार्की। मेट्रियार्की आपको पता है, दिस इज कैकिस्टोक्रेसी एंड या दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है दैट इज, अभी हमने दो चीजें छोड़ दी थी ना, हाँ, क्लेप्टोक्रेसी। इट्स अ गवर्नमेंट बाय थीव्स, चोरों की सरकार। जब मोदी जी कुछ कहते नहीं है महंगाई को लेकर के, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, तो लोग उन्हें चोर बोलते हैं कि ये चोरों की सरकार है। ये उनका ओपिनियन है। क्लेप्ट इज अ रूट वर्ड फॉर थेफ्ट, क्लेप्ट इज अ रूट वर्ड फॉर थेफ्ट, ठीक है। तो क्लेप्टोक्रेसी, क्रेसी इज अ रूट वर्ड फॉर गवर्नमेंट एंड क्लेप्ट इज अ रूट वर्ड फॉर थेफ्ट। अगेन डेम, डेम मतलब पीपल होता है, डेमोग्राफी से सुना होगा आप लोगों ने। एंड क्रेसी इज रूल, तो इट्स अ पीपल्स रूल, लोगों की सरकार, लोगों से सरकार और लोगों के लिए सरकार, ठीक है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। क्लेप्टोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, प्लूटोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये तीन वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। एंड वट एवर आई एम टेलिंग इन द क्लास दैट इज गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन, पेपर वहीं से आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज थियोक्रेसी, स्ट्रैटोक्रेसी एंड मे बी द एंड्रियार्की, क्योंकि टर्म थोड़ा सा नया है। पेट्रियार्की ऑप्शन में नहीं देंगे, वो आपको एंड्रियार्की देंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो you will confused. Great. So this is it. Okay. Type of killings and type of government. I'll make you revise once. So crazy is a root word for governance. Government by divine guidance is theocracy, because theo is a root word for religious things. Government by military class is a stratocracy. Government by women, it's matriarchy or maybe gynearchy. Gyn is also a root word for women. Government by men is patriarchy. But these days people call it andriarchy also, थोड़ा सा नया लगता है। Andros is a root word for male. Government by departments of state, bureaucracy. Government by nobles, aristocracy. Government by wealth, plutocracy, like wealthy people, ठीक है। और wealthy people कैसे, टाटास, बिरलास, अंबानीज, अडानीज kind of people. Government by thieves, it's a kleptocracy. Klept is a root word for theft. Government by the people, democracy. Government by moneyed people, money in the form of land and plantation. Government by least competent people, kakistocracy. Government by one absolute power, autocracy. Absence of government, anarchy. System ruled or controlled by men is patriarchy. The rule or control of mother, the male dominance, female dominance and the mother dominance कह सकते हो, it's matriarchy. Matriarchy से एक word और भी ज़्यादा commonly बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये लोग। The leaves that we provide for a motherhood feeling is maternity leaves. Maternity word मत भूलिएगा guys, maternity. हर हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है maternity ward. Metronym I have told you, ऐसे ही maternal land भी होता है, मतलब नानी घर, जहाँ पे मम्मी का जो maternal land है, मतलब जो उनको belong करता है, ठीक है। तो maternal, maternity, matriarchy, everything is just for mother. Self rule or control is autonomy. So this is all we have done about type of killings and government. This is one of the most important class and I have just I have divided this topic. ऐसा नहीं है कि one more substitution में इतना ही था, but I have just converted them into micro topics, जिससे आपको करने में आसानी रहेगी, बहुत learn करना easy रहेगा, and for us also it's easy to manage. So thank you class. See you in the next class.